Hello everyone, welcome to Commerce Learning Classes. In our last video, we have covered basic terms which are related to not-for-profit organization. And we have learned how to make receipt and payment account, how to calculate subscription when different informations are given. We have learned how to calculate amount of goods consumed, depreciation. All these things we have done in our last video. Today we will learn how to prepare income and expenditure account and balance sheet when receipt and payment account and additional information are given. So we have the first question. Following is the summary of cash transaction of Royal Club for the year ended 31st March 2020. Receipt and payments account for the year ended 31st March 2020. Now कुछ informations given है, receipt and payment account given है, and additional information are given that in the beginning of the year, the club possessed book of rupees 2 lakh and furniture of rupees 85,000. Subscription in arrear in the beginning of the year amounted to rupees 3,500 and at the end of the year 4,500. And 6 months rent at the rate of rupees 1,400 per month was due both in beginning of the year and at the end of the year. Prepare income and expenditure account of the club for the year ended 31st March 2020 and its balance sheet as at that date after writing off 5,000 and 11,300 on furniture and books respectively. So these are informations given, and now we will make income and expenditure account for this. So firstly, books of रॉयल क्लब. हम ये किसके बुक्स में एंट्रीज कर रहे हैं? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर हम किसका बना रहे हैं? रॉयल क्लब का. तो फर्स्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020. पहले हम पेमेंट्स का लिखते हैं, एक्सपेंसेस का. सबसे पहले गिवन है रेंट और नीचे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है that 6 month rent at the rate of 1,400 per month was due both in the beginning of the year and at the end of the year, and rent is given 16,800. तो हम क्या करेंगे, ये हमारी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड. यहाँ हमारे आएंगे सारे एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट साइड में आएंगी इनकम्स. टू रेंट 16,800 इज गिवन. तो जो एंड ऑफ द ईयर रेंट आउटस्टैंडिंग है वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा क्योंकि वो करंट ईयर का है. तो आउटस्टैंडिंग रेंट at the end of the year. ₹1,400 for 6 months. तो 1,400 into 6 8,400 ये हम ऐड करेंगे और हम इसमें से लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट जो बिगनिंग में हमारे पास
आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग रेंट एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। सेम अमाउंट होगा क्योंकि वो भी 6 मंथ का रेंट आउटस्टैंडिंग है हमारा 1400 पर मंथ का। तो जब हम इसे प्लस माइनस करेंगे तो ये 16,800 ही आएगा। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस से रिलेटेड हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम वेजेस लिख देंगे 24,500। तो टू वेजेस 24,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 7,200, electricity charges 7,200. Next, by honorarium 43,500. ये भी एक्सपेंस है। टू honorarium 43,500. नेक्स्ट बाय बुक्स। बुक्स यहां पर बिगनिंग में भी यहाँ एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि हमारे पास बिगनिंग में ये बैलेंस है और इसमें डेप्रिसिएशन भी बताया, राइटिंग ऑफ। तो इट मींस ये हमारी असेट्स हैं, तो ये परचेज ऑफ बुक्स होगा, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंस, इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। टू ऑफिस expenses, amount is 45,000. Next is given by 3% fixed deposit. Fixed deposit है तो हमारी assets हो जाएगी। So here it is mentioned the writing of furniture and books by 5,000 and 11,300 respectively. तो ये हमारा डेप्रिसिएशन होगा और डेप्रिसिएशन हम एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, फर्नीचर पर गिवन है 5,000 और बुक्स पर है 11,300। टोटल हो गया 16,300। अब हम लेंगे रिसीप्ट साइड। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस हमारी इनकम होती है क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की है, तो हम इसको लिखेंगे इनकम्स में 25,500। तो यहां आएगा बाय एंट्रेंस फीस 25,500। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन 1,60,000 और एडिशनल ये यहां पे गिवन है कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 3,500 and at the end of the year 4,500 by subscriptions 1,60,000। इसमें भी जो एरियर है इन द बिगनिंग वो लेस होगा और एट द एंड जो है वो करंट ईयर का होगा, तो हम उसे ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन एरियर एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4,500, तो वो हम प्लस करेंगे। और बिगनिंग में है हमारा
3500 एरियर है तो वो लेस हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन एरियर in the beginning of the year. $3,500 ये हम लेस करेंगे। 1,60,000 प्लस 4,500 माइनस 3,500 तो ये कितना आ जाएगा 1,61,000। नेक्स्ट इज लीगेसी। लीगेसी गिवन है 16,500। हमने पढ़ा था पहले कि जब लीगेसी मेंशन ना हो कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो हम उसे जनरल मानेंगे और जनरल जो लीगेसी होगी वो रेवेन्यू नेचर में कैलकुलेट की जाएगी और उसे हम इनकम में शो करेंगे। तो यहां आ जाएगा बाय लीगेसी 16,500। नेक्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमारी कैपिटल नेचर की है तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट टू सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो ये हमारा सरप्लस है एंटरटेनमेंट इवेंट से, ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा और इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मेंशन करेंगे बाय सरप्लस फ्रॉम entertainment event. The amount is 5,600। यहाँ पर गिवन था फिक्स डिपॉजिट 3% फिक्स डिपॉजिट, तो इट मीन्स ये 3% क्या है इंटरेस्ट है। 1 अक्टूबर 2019 को है तो कितने मंथ्स का होगा अप टू 31 मार्च 6 मंथ्स का। तो हम ये हमारी इनकम होगी तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। तो ये होगा हमारा 80,000 का 3% फॉर 6 मंथ्स तो हो जाएगा 1,200 रुपीज। अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हमारी सारी ट्रांजैक्शन हो गई है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, हमने सब रिकॉर्ड कर लिया। अब हम सरप्लस या डेफिसिट जो होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। $2,09,800 इस साइड का हम ऐड करेंगे डेबिट साइड का, तो दिस विल कम 1,53,300। इसे हम 2,09,800 से माइनस करेंगे तो दिस विल कम 56,500। सो दिस विल बी टू सरप्लस, ये हमारा सरप्लस हो जाएगा।
सो दिस इज हाउ वी मेक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट. बैलेंस शीट as on March 31st, 2020. अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, तो हम वर्किंग नोट्स में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. वर्किंग नोट्स में बैलेंस शीट ऑन एज ऑन April 1st, 2019. ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए हमें ओपनिंग कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है हमारे पास. हमारे पास बुक्स हैं 2 लाख रुपीस की, फर्नीचर है 85,000 का. तो ये हम लिखेंगे बुक्स आएंगी 2 लाख रुपीस, फर्नीचर 85,000. सब्सक्रिप्शन एरियर था हमारा बिगनिंग में 3,500 का. ये भी हमारा असेट साइड में आएगा. सब्सक्रिप्शन एरिया 3,500. कैश और बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड है 10,000 और कैश एट बैंक 21,900. ये हमारा आ जाएगा. कैश 10,000 और कैश एट बैंक 21,900. ये हम टोटल कर लेंगे. $3,20,400. Now liabilities. लाइबिलिटीज में हमें गिवन है रेंट आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ ईयर 1,400 रुपीज पर मंथ फॉर 6 मंथ. तो ये हमारा लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा. आउटस्टैंडिंग रेंट 8,400, 1,400 इंटू 6. और कुछ हमारा लाइबिलिटीज में है नहीं, तो हम बैलेंसिंग फिगर कर देंगे इसका.
3,20,400 माइनस 8,400, तो ये क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर कितना माइनस करेंगे तो ये आएगा 3,12,000। ये हमारी बैलेंस शीट हो गई ओपनिंग। अब हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। लायबिलिटीज में इसमें भी हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है सेम 1,400 रुपीज पर मंथ फॉर 6 मंथ। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो जाएगा 8,400। कैपिटल फंड, कैपिटल फंड हम कैलकुलेट करेंगे कि ईयर एंड में कितना होगा 3,12,000 हमारे पास है। नाउ लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 रुपीज, ये हमारा ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में, तो हम इसे ऐड करेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी 25,000 और इसमें हम ऐड करेंगे सरप्लस जो आया था हमारा 56,500। तो ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,93,500। ये हमारा लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड आ गया। अब हम असेट्स में सबसे पहले लिखेंगे बुक्स। बुक्स हमारे पास 2 लाख रुपीस हमारे पास पहले से है। इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बुक्स गिवन है पेमेंट्स में 21,300, यानी कि ये क्या होगा परचेज ऑफ बुक्स। तो इसे हम ऐड करेंगे, ऐड जो हमारा परचेज हुआ 21,300 और इसमें डेप्रिसिएशन गिवन था लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन गिवन है बुक्स का 11,300, तो ये हम माइनस कर देंगे। तो बुक्स का बैलेंस आएगा 2,10,000। नाउ फर्नीचर, फर्नीचर गिवन है 85,000। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन गिवन है 5,000 रुपीज का, तो फर्नीचर का बैलेंस आ जाएगा 80,000 रुपीज। फिक्स डिपॉजिट किया हमने 80,000 का और फिक्स डिपॉजिट पर हमारा इंटरेस्ट था 1,200 का। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट हमें इमीडिएट नहीं मिलता, बाद में मिलता है, तो एक्रूड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट 80,000 और ऐड करेंगे हम एक्रूड इंटरेस्ट कितना 1,200, तो ये हो जाएगा 81,200। सब्सक्रिप्शन एरियर गिवन है एट द एंड कितना गिवन था 4,500, तो ये हम बैलेंस शीट में शो कर देंगे 4,500 और कैश और बैंक का बैलेंस लिख देंगे जो
एंड में है, कैश का है, कैश गिवन है हमें 2000 और कैश एट बैंक 24,200, कैश 2000 और 24,200। तो अब हम असेट्स और लायबिलिटीज का टोटल कर देंगे। असेट्स का होगा 4,01,900 और लायबिलिटीज का टोटल क्या है 4,01,900। तो ये हमारी बैलेंस शीट हो गई एज ऑन 31st March 2020। So we have prepared income and expenditure account and balance sheet from receipt and payment account and additional information. Okay, we'll do another question, and the question is receipt and payment account of Medical Aid Society for the year ended 31st March 2020 is given below. ये हमें receipt and payment account दिया हुआ है और additional information में हमें subscription से related information दी हुई है, stock of medicine, amount due to medicine supplier. It means हमें इसमें amount of medicine consumed भी calculate करना होगा, equipment, building, हमें काफी सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो हम इसमें सबसे पहले वर्किंग नोट्स बना के और ओपनिंग बैलेंस शीट प्लस सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा। अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे इसमें, सबसे पहले हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as on 1st April 2019. As on April 1, 2019. सबसे पहले इक्विपमेंट दिया हुआ है हमें, ओपनिंग बैलेंस 2,10,000 का और बिल्डिंग 4 लाख रुपीस की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स है 2,10,000, बिल्डिंग 4 लाख रुपीस। असेट्स में हमारा जो सब्सक्रिप्शन ड्यू होगा एरियर वो आएगा, ओपनिंग में है 5,000 रुपीज, तो ये हमारा बैलेंस शीट में आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन एरिया है 5,000 रुपीज। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपीस का, यह आएगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन 1 लाख रुपीस। इसके बाद हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन है
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 7%, 70,000। यानी हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट होगा जिस पर हमें इंटरेस्ट मिला है 7% रेट से 70,000, तो इन्वेस्टमेंट हमारा असेट्स में आएगा, उसे भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे कैलकुलेट? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी 70,000, हमारा इंटरेस्ट गिवन है एट द रेट ऑफ 7%, तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 70,000 into 100 upon 7, so that will be 10 lakh। इसके बाद कैश इन हैंड 20,000 और कैश एट बैंक 50,000। कैश इन हैंड 20,000, कैश एट बैंक 50,000। लायबिलिटीज में हमारा क्या आएगा? लायबिलिटीज में अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर, ये गिवन है, ओपनिंग है 80,000, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लायबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स, मेडिसिन के लिए 80,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस गिवन है 10,000 का इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लायबिलिटीज में आएगा। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 10,000। अब हम कैपिटल फंड निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर करके, तो असेट साइड ऐड करते हैं। $17,85,000, इसे हम माइनस करेंगे, तो ये आएगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 17,85,000 में से 90,000 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 16,95,000। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ, हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव हुआ हमें 5 लाख रुपीस का, 5 लाख। अब इसमें जो सब्सक्रिप्शन ड्यू था 5,000 रुपीस का एट द एंड ऑफ द ईयर वो ऐड करेंगे, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है बिगनिंग ऑफ द ईयर ये ऐड करेंगे।
तो ये होगा एड सब्सक्रिप्शन इन एरिया एट द एंड, हम उसे ऐड करेंगे 10,000 सब्सक्रिप्शन इन एडवांस इन बिगनिंग ऑफ द ईयर, उसे भी हम ऐड करेंगे क्योंकि वो एडवांस करंट ईयर का होगा। और इसमें से लेस करेंगे हम सब्सक्रिप्शन एरिया इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि वो लास्ट ईयर का होगा। कितना है बिगनिंग का 5,000, ये हम माइनस कर देंगे। अब इसमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड है, ये हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, तो ये माइनस हो जाएगा। लेस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर जो गिवन है, ये 5,000 भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा सब्सक्रिप्शन फॉर 2019-20 क्या होगा 5,10,000। So this will be credited to income and expenditure account for the year. Now अब हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। तो सबसे पहले क्योंकि हमें अमाउंट ड्यू टू मेडिकल सप्लायर्स दिया हुआ है, बिगनिंग और एंडिंग मेडिसिन पेमेंट पे लिखा हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, क्योंकि इसमें परचेज नहीं लिखा हुआ और कहीं पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं है, तो वी विल कंसीडर इट एज पेमेंट टू द क्रेडिटर्स। तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे और इससे हम परचेजेस निकालेंगे। ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड, यहां आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस जो 1 अप्रैल को दिया हुआ दैट इज 80,000। 80,000 क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन दैट इज 1,20,000। और जो मेडिसिन का दिया हुआ है टू बैंक, हम इसे पेमेंट मानेंगे, तो दैट इज गिवन 2,50,000। तो अब हम बैलेंसिंग फिगर करके हम क्या निकालेंगे बाय परचेजेस। परचेजेस कितना हो जाएगा, दिस इज 3,70,000 माइनस 80,000 by purchases, balancing figure 3,70,000 minus 80,000 2,90,000। ये हमारा क्रेडिटर्स आ गया। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो ये होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन प्लस परचेजेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है मेडिसिन का 1 लाख और क्लोजिंग 1,50,000, तो 1 लाख रुपीस प्लस परचेजेस हमने कैलकुलेट किया 2,90,000 का माइनस 1,50,000, तो मेडिसिन कंज्यूम्ड आ गया हमारा 2,40,000। This will be shown in income and expenditure account. Now we will make income and expenditure account. Now we will make income and expenditure in the books of Medical Aid Society. Incomes, expenditures. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सबसे पहले हम मेडिसिन कंज्यूम लिखेंगे जो हमने अभी वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया था, दैट इज 2,40,000। उसके अलावा ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स 1 लाख, ₹1,00,000। नेक्स्ट सैलरीज 2,75,000 और सन्ड्री एक्सपेंसेस 5,000 टू सैलरीज 2,75,000 into sundry expenses 5,000. Next, चैरिटी शो एक्सपेंस दिए हुए हैं यहाँ पर 10,000 और हमें रिसीप्ट साइड में चैरिटी शो प्रोसीड्स भी गिवन है। प्रोसीड्स है हमारी 30,000 की और एक्सपेंसेस हैं 10,000 के, तो ये बैलेंस इनकम में आ जाएगा हमारा। इसके अलावा हमारे पास जो एक्सपेंस हैं उसमें आएगा, हमें इक्विपमेंट्स दिए हैं 2,10,000 के और इक्विपमेंट परचेस भी दिखा रहा है ये 1,50,000 के और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 3 लाख रुपीस का। तो हमारा डेप्रिसिएशन इसमें हो जाएगा क्योंकि 2,10,000 प्लस 1,50,000 3,60,000 और बैलेंस दिखा रहा है ये एंड में 3 लाख रुपीस, यानी 60,000 का क्या होगा डेप्रिसिएशन होगा। तो हम टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स में हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे 2,10,000 हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, 1,50,000 की हमने परचेज की और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा 3 लाख रुपीस का, तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 60,000। बिल्डिंग हमें 4 लाख रुपीस की गिवन है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 3,80,000 का, तो यानी कि हमारा डेप्रिसिएशन होगा बिल्डिंग पर कितना 20,000।
नाउ ऑन इनकम साइड, इनकम में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन जो हमने कैलकुलेट किया 5,10,000 का, यहां आएगा बाय सब्सक्रिप्शन 5,10,000 का। ओके, नेक्स्ट जनरल डोनेशन गिवन 45,000 बाय जनरल donation 45,000 rupees. Next, डोनेशन मेडिकल कैंप्स, तो ये हमारा ये जो डोनेशन है ये स्पेसिफिक नेचर का हो गया क्योंकि मेंशन है मेडिकल कैंप्स के लिए, तो ये कैपिटल फंड में ऐड होगा। नेक्स्ट इज टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारा इंटरेस्ट जो होगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारा इनकम में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 70,000। हमें यहाँ चैरिटी शो एक्सपेंस गिवन है और चैरिटी शो प्रोसीड्स गिवन है, तो हमारी प्रोसीड्स ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो हमें ये 20,000 का जो बैलेंस होगा ये इनकम साइड में शो करेंगे, तो इसे लिखेंगे हम बाय चैरिटी शो प्रोसीड्स, ये गिवन है हमें 30,000 की, और इसमें से हम लेस कर देंगे चैरिटी शो एक्सपेंस 10,000 का, तो 20,000 हमारा ये इनकम साइड में आ जाएगा। ये हमारी सारी ट्रांजैक्शंस जो हमें जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड कर ली। अब हम इनका बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल हमारा आएगा 6,45,000, ये क्रेडिट साइड का है, और हमारा डेबिट साइड का कितना आएगा 7 लाख रुपीस का हमारा डेबिट बैलेंस आया, और हमारे एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन इनकम्स, तो ये हमारा क्या होगा डेफिसिट, तो यहां आ जाएगा बाय डेफिसिट। बैलेंसिंग फिगर जो हमने निकाला ये माइनस करके लिखेंगे 7 लाख माइनस 6,45,000, तो यह आ जाएगा 55,000, तो ये हमारा बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब हम इसकी बनाएंगे बैलेंस शीट। ओके,
सबसे पहले हम इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस गिवन 3 लाख एंड 3,80,000। इक्विपमेंट्स 3 लाख रुपीस एंड बिल्डिंग 3,80,000 rupees. Next, stock of medicine 1,50,000. Stock of medicine जो क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000. सब्सक्रिप्शन ड्यू, नेक्स्ट हमारा आएगा सब्सक्रिप्शन ड्यू जो क्लोजिंग बैलेंस है कितना 10,000. सब्सक्रिप्शन एरिया 10,000. नेक्स्ट हमें इन्वेस्टमेंट था हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में जो हमने कैलकुलेट किया था दैट वाज ऑफ ₹10 लाख. नेक्स्ट हम कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का बैलेंस लिख देंगे. हमारा गिवन है कैश इन हैंड है हमारा 15,000 और कैश एट बैंक 30,000. 15,000 and this is 30,000. लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड हमने बैलेंसिंग फिगर में कैलकुलेट किया था. इट वाज 16,95,000. इसमें हमें डोनेशन मिली है मेडिकल कैंप के लिए 1 लाख रुपीस की. ये स्पेसिफिक डोनेशन है, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी तो इसे हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे. डोनेशन मेडिकल कैंप 1 लाख रुपीस की. और इसमें से जो हमारा डेफिसिट था वो हम माइनस कर देंगे. डेफिसिट था हमारा 55,000 का, तो हमारा कैपिटल फंड कितना होगा 17,40,000. नेक्स्ट हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी पोलियो एरेडिक्शन के लिए, तो हम क्या करेंगे इसको 70,000 की और उसमें से हमने मेडिसिन परचेज की है 50,000 की. तो ये हमें जो ग्रांट मिलती है इसे हम लायबिलिटीज में शो करेंगे क्योंकि 70,000 मिली थी हमें, हम 50,000 के एक्सपेंस कर चुके हैं. तो इसे हम स्पेसिफिक फंड जो होते हैं ये हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं. पोलियो फंड 70,000 का था, इसमें से हमने एक्सपेंस किए हैं मेडिसिन ली पोलियो की 50,000 का. तो हमारा बैलेंस 20,000 जो फंड का भी रिमेनिंग है वो लायबिलिटीज में आ जाएगा. इसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, जो हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर गिवन है 5,000 का.
और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स, इसका जो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग जो दिया हुआ है क्रेडिटर्स का अमाउंट, हम वो लिख देंगे. दैट इज गिवन 1,20,000 अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर. $1,20,000. अब हम इसको टोटल कर लेंगे. $18,85,000 असेट साइड का टोटल करेंगे. $18,85,000. तो ये हमने प्रिपेयर की बैलेंस शीट फॉर द as on March 31st, 2020. So like this, we can prepare income and expenditure account and balance sheet if receipt and payment account and some additional information are given. So now we have completed our chapter accounting for not for profit organization. In our next video, we will do retirement and death of a partner. Till then, take care, stay safe. Have a nice day. Thank you.